है कि नहीं? नाउ इसमें आप देखो, वेरी ब्यूटीफुल शो ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, देख रहे हो? तो इट बिगिंस लाइक दिस, है कि नहीं? So this yellow layer is called the what? This yellow layer is called the your integuments, and उसके अंदर there is a ovule, तो बड़ा सा ओव्यूल है, एंड उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो आप देखिए, ये मेगास्पोरेंजियम है एंड ये मेगास्पोरोसाइट है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट सेल एंड मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होने के बाद देयर आर 4 सेल्स, ओके, 1 2 3 4, आउट ऑफ दिस द 3 degenerate and 1 remains. उसके बाद 1 will produce 8 cells. So how many mitosis involved? 8. Sir, Yeah. 7. 7. 4 mitosis. Mitosis. 4. Ironically, all these things are finished in your schools and you are not telling it at all properly. There will be 3 meiosis, okay, 3 mitosis. 1 say 2, this is 3 generations, not a number of mitosis. Okay, so there are 3 generations of mitosis. 1 will produce 2, 2 will produce 4, and the third will produce 8. So there are 3 generations of mitosis. Yes, number of mitosis is 7. That is the best answer. Number of Yes, sir. mitosis. Yes, sir. But how many generations of mitosis? That is 3. Okay. So now these 8 cells, they will rearrange to form this concept. Again, here see, the antipodals are very separate and these are the polar nuclei. Here they are not fused. So I'll tell you now, this books to books, this will be different. And this is your egg triad. Now, uske niche, so this is your what? Formation of male gametophyte. Dekh rahe ho? So the formation of male gametophyte is here, very beautiful. So this is the microsporangium, this is the microsporocyte, produces meiosis, meiosis is producing microspores. Okay, now again each microspore divides once by mitosis, okay, and they will produce 2 daughter cells, each will produce different. So now this, out of the 2 daughter cells, one is the generative cell and one is the tube cell. Aa gaya maza? So you see how beautiful diagrams are there, and now this is the polytube formation and fertilization. So this we will discuss in the next class. Okay? So now we will go into our basic writing part about the, okay. Now before going to megasporogenesis, I thought to tell you something because some of you are asking that question also. Okay, so you can write about the types of, okay, just as we told that integuments. Now the integument may be 1 or 2, or there may not be any integument at all, है कि नहीं? तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. Okay, so now the nucleus is invested all around by 1 or 2 layered coverings called integuments, except at the apex, okay, where a small passage is formed known as the micropyle. तो ये हम already discuss कर चुके हैं. On the basis of number of integuments, ovules are of the following types. उसमें आ जाएगा, पहला है यूनिटेगमिक. वेरी सिंपल, यूनिटेगमिक मीन्स 1 integument. इसमें एग्जांपल आ जाएगा गैमोपेटाले एंड जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, व्हाट आर गैमोपेटाले? यू रिमेंबर, गैमोपेटाले माने कौन? उनका जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगे. ओके, तो ऑल दोज फ्लावर्स हु हैव फ्यूज्ड पेटल्स, तो उसमें ये कंसेप्ट है. एंड पॉलीपेटाले मीन्स अगेन फ्री पेटल्स. ठीक है, एंड मोनोकॉट्स. सो these are the examples of bitegmic. Okay, so gamopetalae and gymnosperms unitegmic. Bitegmic है members of polypetalae and monocots.
एटेगमिक मतलब देयर इज नो इंटेगुमेंट. ओके, इसमें एग्जाम्पल है आपका कुछ, तो आप वो देख सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स लाइक सेंटलम, लोरेंथस एंड लिरियोसोमा. सेंटलम, यू नो व्हाट इज सेंटलम? बोलो, सेंटलम क्या है? देख रहे हो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बॉटनी एक्चुअली, दैट वी डोंट नो दोज थिंग्स, जबकि हम लोग इतना यूज करते हैं. सेंटलम एल्बम इज योर व्हाट? चंदन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड चंदन. तो इसीलिए इसमें आपका जो फ्लावर्स है वो एटेगमिक होगा व्यू. नाउ किसी किसी में okay, third integument in the form of aril. Okay, third integument in the form of aril develops from the base of the ovule or funicle in many plants, example lychee. तो इसलिए लीची का जो चीज आप खाते हो, so that is actually a what? That is actually a swollen third tegument. जो हम लोग खाते हैं, the edible part of lychee. Okay, so उसके बाद जो, so these are some exceptions actually, so that is what you have to remember. Okay, now as in lychee and Inga dulce, aril is fleshy and edible. तो जो बीज है, बीज, you know that बीज is what? It is the seed. Ovule grows into a seed, and that aril is growing into the fleshy part which you are eating, that white fleshy part. इसलिए लीची is also treated as a false fruit. Why? Because we don't eat the ovary. ये अब थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So this is one topic जो हमारा था, तो I thought we should discuss this topic. Okay. Now उसके बाद in case of your जो classification है, तो हम लोग उधर जो we were going into the megasporogenesis part. So now in case of the megasporogenesis part, we found that basically it begins from the ovule side. Okay. So now the next page you will go and we will annotate it. So now the heading is megasporogenesis or formation of the megaspore. ठीक है, formation of the megaspore. ये tomorrow I will be sending you a question of KVPI. Okay, the past questions जो है KVPI में आए हुए, so that I will be sending you. Okay, so what you have to do, you know, you have to practice those questions. I am sending you both essay and SX code. Okay, so both essay and SX code questions I will send. तो आप लोग क्या करेंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है? And then we will discuss that. Fine. So they are already past questions, मैंने जो आपका एक बार आ चुके हैं. So I will be sending it today itself. Actually मैं भेज रहा था, but since net was slow, Yahoo खुल ही नहीं रहा था. चलिए, so we'll start the concept that the ovule at first arises as a primordium on the placenta in the cavity of the ovary. Now, owing to the meristematic activity of the cells of ovular primordia, the protuberances become prominent and constitute the nucleus. Okay. Okay, become prominent and constitute the nucellus. Now, the initials of the two integuments arise at the base of the nucellus and surround it all around except at the apex. Okay. Now,
जो प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल माने जिससे आपका स्पोर मदर बनेगा, द प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म आउटर प्राइमरी सेल वॉल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. ठीक है, so outer primary cell wall and inner primary sporogenous cell. If you remember the diagram, that yellow layer and the sporogenous cell. I'll show you again. The sporogenous cell directly behaves as the megaspore mother cell and gives rise to 4 potential megaspores. Okay, 4 potential megaspores by meiosis. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि meiosis होता कहाँ है. And since again meiosis is producing spores, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Sporic meiosis. ठीक है? Now the 4 megaspores are arranged in a linear tetrad. I'll show you the NCERT diagram. Don't worry, because अभी बीच-बीच में दिखाने से क्या होता है ना, फिर ये edit करने नहीं देता. Okay, so usually 1 megaspore of the tetrad becomes functional and develops further. Meaning out of the 4, the 3 will regenerate. So the 4 megaspores are generated. Usually 1 megaspore of the tetrad becomes functional, okay, and develops further. Rest, okay, rest. degenerate. But again इसमें भी आपका variation होगा. Fine. So if you see different plants, you may find variations also. So that's why we have to be ready for the variation part. Okay. So there's nothing to worry. Now, उसके because biology is the science of variations. So you have to be ready for that. ठीक है? So now the functional megaspore is the first cell. Okay, is the first cell of the female gametophyte. Okay, of the female gametophyte. अब ये आगे divide करेगा. ठीक है? Now it divides. Okay, the functional megaspore, इसको capital M कर देते हैं. Okay, is the first cell of the female gametophyte. It divides by 3 successive mitotic divisions. Mitotic divisions, and to form an 8 nucleate. इसमें एक अलग सा concept भी होता है. Okay, now 8 nucleate pair by papa. चलिए, so just see that 8 nucleate, okay, male gamete, female gametophyte. ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग डिलीट कर दो, इसलिए बाद में कुछ भी एडिट करने देता वही गड़बड़ करता है. So we will again change it. So the functional megaspore is the first cell of the female gametophyte. It divides by 3 successive divisions to form an 8 nucleate female gametophyte or embryo sac. Okay, embryo sac. Understood? तो ना इसमें एक एक जगह कंसेप्ट होता है, माने क्वेश्चंस आता है, because it may not be 8 cells, है कि नहीं? तो 8 nucleate and how many cells will be there? बोलो. 7 cells. 7 cells. ये कहीं कहीं होगा. Okay, this may be a question also. So you have to remember that the polar nuclei, they may not be separate,
दे मे बी फ्यूज्ड आल्सो, है कि नहीं? तो वो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन जाएगा, ठीक है? सो इसलिए it divides by 3 successive divisions to form an 8 nucleate female gametophyte. तो female gametophyte का नाम क्या है? Embryo sac. Now, out of the 8 nuclei, 3 get organized at the micropylar end. Okay, and इसको हम लोग क्या कहेंगे? Egg apparatus. है कि नहीं? 3 at the chalazal end. फाइन, उसको हम लोग कैपिटल सी कर देते हैं. ओके, एंड एज उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटीपोडल्स. एंड 2 at the center. This may be 2 or 1. ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 और 1. तो ये आपका ध्यान होना चाहिए. ओके, एट द सेंटर एज पोलर न्यूक्लियाई. तो जब वो आपका अलग अलग होगा उसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे. अगर सिंगल हुआ उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे. व्हाई? बिकॉज व्हाई डू वी कॉल इट सेकेंडरी न्यूक्लियस? बिकॉज दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमीट. याद है कि नहीं? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. तो वही चीज है. हाँ, तो व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस? बिकॉज इट इज ऑल्सो फ्यूजिंग. तो एट दैट टाइम दो न्यूक्लियस फ्यूज करता है. प्राइमरी न्यूक्लियस इज द एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द व्हाट? दिस. एंड इसका जो तो उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? 2n 2c होगा. ठीक है जी. नाउ दिस इज 2n 2c. Now the egg apparatus, इसमें दो synergids होंगे. The egg apparatus, okay, consists of 2 synergids. तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग गाइड करने में मदद करते हैं. And an egg cell. Okay, so this is कौन? This is monosporic type of development. तो ये अगेन इस पे वेरिएशन होगा आपका. Monosporic type of development generally referred to as the polygonum type. ठीक है जी? Polygonum type. इसमें डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, ओके, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी इस बारे में इसको क्लासिफाई किए थे, है कि नहीं? So Dr. Panchanan Maheshwari is a very very famous plant biologist and he classified this, okay, into different types. वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे with the drawing. Okay, into monosporic, bisporic and tetrasporic embryo sac. Okay. Now, what do you understand by monosporic embryo sac? एक से बना. Okay, from 1 megaspore mother cell. Bisporic का मतलब ये 2 से बना. And tetrasporic मतलब ये 4 से बना. Okay, embryo sac. Now, depending upon the number of megaspore nuclei taking part. ठीक है? तो इसलिए कितना आपका मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट कर रहा है उसके अनुसार से ये उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए हैं. सो नाउ आई विल बी शोइंग यू दोस डायग्राम्स आल्सो. सो नाउ वी विल गो टू आवर डायग्राम. इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा माइनस. So, Abhi, are you able to see this or not? Yes, sir. Yes, sir. फिर हैंग करने से क्या करते हैं? No, sir. रुको रुको, वही ये जो एक्चुअली जो एनसीईआरटी बुक खोल दोगे ना तो ऐसे ही ये पंगा करता रहता है, हैंग करता रहता है. दिस एनसीईआरटी बुक इतना देख रहे, क्लोज द
अब दिखा, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो ये देख रहे हो ना, तो एनसीडी जो गोटे गोटे सेल Yes, ना, sir. Yes, sir. वो एक 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 ऐसे आएगा। तो इसलिए बहुत मोबाइल मैंने एनी वे खोलने में बड़ा दिक्कत करता है ये पीडीएफ, बेकार पीडीएफ बना। चलिए, सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस सेल्स। आप देख रहे हो, तो ये आपका जो आउटर वाला सेल्स है, एंड दिस इज योर fine. So this is your megaspore mother cell and this is the nucellus. ये सिर्फ एक लेयर बना है, इन्होंने क्लोजअप लिया हुआ है। ओके, ध्यान रखिए, ये क्लोजअप लिया हुआ है। अगर आपको वो हर समय बैक ऑफ द माइंड आपको ये ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, सो जो हम लोगों ने ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला आपको हर समय बैक द माइंड ये होना चाहिए। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, एंड दिस इज द फ्यूनिकुलस। तो ये स्ट्रक्चर आपको बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए। एंड ये एम्ब्रियो सैक है, एंड ऑल these cells, all these are basically what? Nucellus. तो ये जो आपका ये न्यूसेलस है, वन ऑफ दोज लेयर्स है ऑफ दिस पिग, एंड ये जो अंदर जो है, ये आपका जो मेगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल इज डिवाइडिंग। ओके, सो ये डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट दिस इज मियोसिस 1, तो इससे आपको एक मेगास्पोर डायड मिला, 1 2। फिर ये आपका है मियोसिस 2, इससे आपको मेगास्पोर टेट्राड मिला। ना डायड मतलब इसमें N2C कंपोजिशन होगा, एंड इसमें आपका NC कंपोजिशन होगा जेनेटिक्स का। अंडरस्टूड? ना आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? तो आफ्टर दिस ऑल आउट ऑफ द 4, तो ये एक डायग्राम इन्होंने स्किप किया है। तो सपोज ये आपका वही आपका न्यूसेलर सेल्स है बॉय, समझे? ये आपका जो न्यूसेलर सेल्स है ना, दिस न्यूसेलर सेल्स, उसके अंदर अब आपका बच जाएगा क्या? ओनली 1 सेल, एंड 4 रिमेन्स रह जाएंगे, 3। सो दिस इज द 1 सेल जो बच जाता है, इसको हम लोग मेगास्पोर कहेंगे। ओके, एंड दीज आर द व्हाट? डिजेनरेटेड मेगास्पोर्स। तो इसीलिए अब ये जो है, एक्चुअली दिस स्टेप दे हैव ईटन। तो इसके बाद एक माइटोसिस, 1 जनरेशन से 2 बना, सेकेंड जनरेशन से 4 बना, थर्ड जनरेशन से 8 बना। ओके, एंड नाउ दीज सेल्स रीअरेंज। ओके, रीअरेंज बना के ये जो बाहर के तरफ चले गए, ये सिनर्जिड्स हो गया। जो इस तरफ आ गए, एक्चुअली एटा कौन, दिस इज ए कंफ्यूजिंग एलिमेंट। ये करके ये दिखाने से लोग समझते हैं कि माइक्रोपाइल चला जा बन गया है कि नहीं। तो ओके, सो देख रहे हो कि नहीं? तो दिस इज द सिनर्जिड एंड, बट यहाँ दिखा रहा है एंटीपोडल्स। तो प्लीज रिमेम्बर, ये उन्होंने फिर से ऐसे उल्टा किया हुआ है। ओके, सो सिनर्जिड है, ये एग है, सेंट्रल सेल्स हैं 2। ओके, एंड दिस इज एंटीपोडल सेल्स। नाउ दिस इज योर एक्चुअली एम्ब्रियो सैक। ना ये जो एक्चुअल एम्ब्रियो सैक है, इसमें 3 एंटीपोडल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 है। सो बट साइटोप्लाज्म में भी सेम है, क्योंकि सेंट्रल सेल लिख दिया, तो इसलिए ये आपका क्या होगा? 8 न्यूक्लियाई 7 सेल कंसेप्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द सिनर्जिड्स, एंड दिस इज द एग सेल, एंड ये जो फिलिफॉर्म apparatus है, which is the characteristic feature of synergid cells. ठीक है? Now you have to remember that in the megaspore mother cell, so ये जो megaspore mother cell है, इसमें meiosis शुरू होता है। So and please remember, never think meiosis 2 is mitosis. It is like mitosis, but don't call it mitosis. So इसलिए दोनों डिवीजन को टुगेदर हम क्या बोलेंगे? Meiosis. So together these 2 divisions are called meiosis. And now
you have 4 cell stage. So this is called the 4 stage cell. उसके बाद ये आ जाएगा 1 cell stage. ओके, इसमें 1 सेल बच गया. फिर ये जो है 3 generations of mitosis and this is your case. So please remember ये एक तो 180 डिग्री टर्न करके दिखाया है. वो that is the concept of NCERT. कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा. ओके, हाँ बोलो. सर यहाँ पर ये हम लोग का जो एक सेल जो बाकी है वो वाला चालासा के एंड में है. नहीं नहीं, यदि एक्सेल वो ये है ना, माइक्रोफाइलर एंड ये एग है. सर ये नहीं सर, स्टार्टिंग वाले में. स्टार्टिंग वाले में भी ये एग है. ये चला जा एंड नहीं है. आई टोल्ड सर यू 1 सेल स्टेज. कौन सा? ये वाला, ये 1 सेल स्टेज में. ये वाला. हाँ सर. हाँ, हाँ इसका सर. सुनो, इसका ये कोई सर. चला, इसमें आई एम नॉट मेंटेनिंग पोलैरिटी, प्लीज रिमेम्बर. ओके, ये आई एम नॉट मेंटेनिंग. ओके सर. इसमें भी कंसेप्ट है. ओके सर. इसमें भी अलग होगा. कोई चला जल होगा, कोई माइक्रोपाइलर होगा एंड कोई फ्री स्कैटर्ड होगा. बिकॉज एनसीईआरटी क्या सारा काट दिया है. ये सिर्फ एक ही वन ऑफ द ऑप्शंस है. देखो, इसलिए मैंने कोई आपको माइक्रोपाइलर ये कुछ लिखा नहीं है. एइथर देखा जाउची सेही पे तमे भाबुच, बट हियर व्हिच इज माइक्रोपाइलर व्हिच इज चलाजार आई एम नॉट शोइंग पोलैरिटी. ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए, सो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए. चलिए, तो दिस इज, एंड प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम एज इट इज यू हैव टू गोस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम आएगा जरूर. अंडरस्टूड? So now we will go into our board. So इसीलिए we have to remember that actually किधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किधर मियोसिस हुआ एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में किधर मियोसिस हुआ. Now उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है that we will discuss is again जो क्लासिफिकेशंस है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल है कि नहीं. तो इस टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम लोग अलग अलग टाइप्स देखेंगे. जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था वो था एनाट्रोपस ओव्यूल. तो इसमें वी विल सी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल. इसका डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं, अगर आपको ध्यान है. नहीं तो मैं फिर से भेज दूंगा, क्योंकि साथ में वो दिखाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है. बिकॉज वो स्क्रीन है ना, वो ये टेक्स्ट बॉक्स बंद हो जाता है. So that's why I cannot show you simultaneously. I have already sent that diagram so that you can check at home. So now these are the types of ovule. Orthotropous ovule, straight ovule है. इसको हम बना सकते हैं ऐसे नीचे. अगेन क्या ना, वो अगर ये पेन नीचे ले लो तो ये फिर बंद हो जाता है. उसको एडिट करने के बाद हम करेंगे, ठीक है. Now the orthotropous, actually I am pasting it because it makes it faster. Otherwise फिर वो टाइप करने में स्पीड होता है ना, स्लो. So the micropyle चला जा funicle are in a straight line. Anatropous में क्या होता है, 180 डिग्री टर्न होता है. So that is why in a straight line. इसमें एग्जांपल है पाइपर, पॉलीगोनम एंड साइकास. ठीक है जी. Anatropous ovule में the ovule turns 180 degree. Okay, angle. Thus it is called inverted ovule. ठीक है. The micropyle lies close to hilum or at side of hilum. So ये सबसे कॉमन टाइप है 82% of angiospermic families. ठीक है. इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस. तापरे उसके बाद आ जाएगा आपका जो कैम्पाइलोट्रोपस. फाइन. कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है, इसमें क्या होगा, और फिर वही अगर उसमें चेंज कर दो ना, फिर उसको एडिट करना मुश्किल है. ओके, नाउ इसको कर लेंगे, फिर जो भी एडिट करेंगे. तो दिस इज 180 डिग्री एंगल. नाउ कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस एट राइट एंगल, माने हाथ जैसा होगा. अगर नीचे है फ्यूनिकल हाइलम, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपका जो माइक्रोपाइल होगा.
So that is called Campylotropus. It is basically common in Leguminosae या Crucifery family. The micropylar end is bent down slightly. उसके बाद Hemianatropus ovule turns at 90-degree angle. Okay, 90-degree angle upon the funicle or body and is at right angles to the funicle. Example है Ranunculus. Amphitropus ovule as well as embryo sac is curved like horseshoe shape. ये घोड़े का जैसे शेप होगा. ओके, तो इसमें एग्जांपल आता है लेमना, पॉपी एंड अलिस्मा. तो ये आपका जो है, दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी टॉपिक, तो ये स्पेशल टॉपिक है. नाउ Circinotropus, ये यूनिक टू कैक्टस बेसिकली है. तो द ओव्यूल टर्न्स एट मोर देन 360-degree angle. Okay, so funicle becomes coiled around the ovule. Example Opuntia and Plumbagenesis. तो एक्चुअली ये अगर इसमें फिगर पेस्ट, ये ब्लैक बोर्ड में फिगर पेस्ट नहीं होता, नहीं तो मैं फिगर भी पेस्ट कर देता. आई एम शोइंग यू द ड्राइंग एक्चुअली. सो आई हैव सेव्ड दैट मीटिंग. तो मैं आपको ड्राइंग यहाँ दिखा सकता हूँ. इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको भेजा हुआ है. सो आप उसको घर में भी देख सकते हो. ये तो देख रहे हो. Now see this. Okay, आ गया मजा. So now you see here. So ये जो है आपका जो फर्स्ट टाइप, इसमें this is the micropylar end. Always look at the micropylar end. Okay, micropylar end, micropylar end and micropylar end. तो ये जो है आपका A या ऑर्थोट्रोपस है, मीन्स माइक्रोपाइल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. ओके, ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये तो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है. इसमें आप देखिए जो कैम्पाइलोट्रोपस, ये आपका मुड़ के उसके पास आके खड़ा हो गया माइक्रोपाइल, थोड़ा दूर में. एंड एम्ब्रियो सैक भी स्लाइटली कर्व्ड है. दिस इज 90 डिग्री. ओके, जो आपका हेमियानाट्रोपस है ये 90 डिग्री है. ये जो एम्फीट्रोपस है या इसको सिरसिनोट्रोपस भी कह सकते हैं. तो इसमें आप देख रहे हो एम्ब्रियो सैक इज आल्सो हाईली कर्व्ड. ठीक है, आई एम सेविंग दिस. आई विल सेंड यू दिस आल्सो. आई हैव ऑलरेडी सेंड इट टू यू. ठीक है. सो तो आपका जो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पेलोट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ये सिरसिनोट्रोपस का नहीं है डायग्राम, वो आई विल सर्च एंड आई विल गिव. ओके, मैं इसको आपको ढूंढ के दूंगा. नाउ तो इसीलिए दीज आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे. सो अब हम लोगों ने ओव्यूल डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डिस्कस्ड द व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल आल्सो. ना उसके बाद जो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो किस किस तरह का है वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो इसमें हम लोग एक टेबल ऐड करेंगे. नाउ ओके, जो हमारा मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, ये तो हम लोग ऐसे हम लोग कर लिया है ना. दिस इज ऑलरेडी डन. फिर भी लिख लो. एग्जाम्पल्स अलग हैं. We have done this monosporic, bisporic and tetrasporic. Okay, means if one megaspore nucleus forms embryo sac, अगर 2 बनाता है तो bisporic. Okay, yes sir. take part in development of embryo sac. तो उसमें एग्जाम्पल आपका एलियम. एलियम क्या है? इसलिए आप जब भी एग्जाम्पल याद रखो वो याद रखो जो आपको याद आएगा. एलियम बोलो. ओनियन. ओनियन. यस. तो इसीलिए बायोलॉजी में उस एग्जाम्पल्स को याद रखिए जो आपके कॉमन लाइफ में यूज होता है.
तो ओनियन तो हमें याद ही है, तो इसलिए ओनियन में हमारा बाइस्पोरिक केस है। उसी तरह इनोथेरा, इनोथेरा इज विच प्लांट? इवनिंग primrose, and this plant was used by Hugo de Vries to discover your mutation. तो इसलिए इस तरह से ये एंडीमियन है, ये मेरे को भी मालूम नहीं है कौन सा प्लांट है, तब तुम्हें कहां से मालूम होगा? तो जस्ट लाइक दैट. सो इवन इन टेट्रास्पोरिक ऑल 4 मेगास्पोर्स. ओके, अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अगर ओनली 1 मेगास्पोर है तो हाउ मेनी माइटोसिस जनरेशंस? 3. समझ कि नहीं? कॉमन सेंस. एंड में 8 ही सेल चाहिए, समझ आया? तो इसलिए ये आपका मेन चीज है. तो बाइस्पोरिक में कितना चाहिए होगा फिर? 6. 2 मेगास्पोर ऑलरेडी है. सॉरी तो 2 से 4, 4 से 8. तो हाउ मेनी? 8 so 2. 2 generations. 2 Generation. Don't count number of mitosis. I am telling how many generations of mitosis. Yes, sir. तो इसमें Two. इसमें 3 जनरेशन होगा, इसमें 2 जनरेशन होगा, एंड इसमें 1 जनरेशन. 2 generations होगा. ठीक है? 1 generation. ओनली 1 जनरेशन. 4 है तो एक माइटोसिस करोगे तो 8 सेल हो जाएगा. अल्टीमेटली हमको 8 ही सेल चाहिए. ओके, 8 हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेम्बर वी नीड 8 सेल्स, वी डोंट नीड मोर सेल्स फॉर दैट. ठीक है जी? Yes, तो sir. ये Yes, sir. हमारा जो टॉपिक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर डेवलपमेंट. अब हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक डेवलप कर लिया. सो नाउ हमारा उधर क्या डेवलप हुआ पड़ा है? माइक्रोस्पोर. एंड इधर वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द मेगास्पोर. सो नाउ हमारा जो कंसेप्ट है उसमें क्या है? तो नाउ वी विल सी आवर डायग्राम. ये वाला जो डायग्राम हम लोग थोड़ा दोबारा देख लेते हैं.